ہر کوئی اپنے مرضی کے مطابق جواہرات نہیں پہن سکتا، ہر کسی کا ذائقہ دیکھنا پڑتا ہے۔ تو آپ بھی ادھر ادھر بھٹکنا چھوڑیے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں یعنی گوہروں کے کرشموں سے استفادہ کیجیے اور آج ہی ہم سے ربط پیدا کیجیے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں پریشان ہیں، پریشانی پیسوں کی ہو، پریشانی صحت کی ہو، آپ شادی بیاہ کے بارے میں پریشان ہو، بار بار تلاش کرنے کے بعد بھی نوکری نہیں مل رہی ہو، کاروبار میں ترقی چاہتے ہوں یا پھر بیرونی ملک جانا چاہتے ہوں یا پھر کوئی بھی مشکلات ہوں، اس کے لیے ہم سے رابطہ قائم کریں۔ راسک جیمز اینڈ جویلرز، راسک جیمز اینڈ جویلرز۔ ناظرین آداب، میں آپ کا دوست احمد راحل پاشا آپ تمام ناظرین کا پروگرام جواہرات کا کرشمہ میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، یہ ایک ایسا پروگرام ہے جس میں آپ اپنے کسی بھی مسئلے کا حل جان سکتے ہیں اور آپ کے سوالوں کے جوابات دینے کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے ایک ایسی شخصیت جن کو کنگ آف جیمز کے نام سے جانا جاتا ہے، بین الاقوامی شہرت یافتہ شخصیت کے مالک ڈاکٹر ایم رضا صاحب۔ ڈاکٹر رضا صاحب، آپ کا خیر مقدم ہمارے اسٹوڈیو میں۔ شکریہ جناب۔ تو ناظرین، ڈاکٹر ایم رضا صاحب کو کئی ایک انعامات سے نوازا جا چکا ہے۔ ساؤتھ انڈیا کے مختلف چینل پر آپ آ کے اپنے پروگرام دیکھتے ہیں اور لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، تو یہ ناظرین آپ کی اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ ڈاکٹر ایم رضا صاحب آج پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں اور 1 گھنٹے تک رہیں گے۔ آپ بھی اگر اس پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں، کسی بھی طرح کی آپ کی پریشانی ہے یا پرابلم ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کا حل تلاش کیا جائے، تو آپ جو ہے کال کر سکتے ہیں دیے ہوئے نمبروں پر اور ڈاکٹر ایم رضا صاحب سے بات کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہمارے دوسرے شہروں کے ناظرین ہیں، خاص کر کے وشاکھاپٹنم کے، وہ ڈاکٹر ایم رضا صاحب سے بات کر کے اپائنٹمنٹ لے کے ان سے ملاقات کر سکتے ہیں ہر بدھ کو، یعنی کہ ایوری ویڈنسڈے کو صبح 9 بجے سے لے کے شام کو 7 بجے تک، یا وجے واڑہ کے جو ہمارے ناظرین ہیں وہ ایوری تھرسڈے یعنی کہ ہر جمعرات کو ڈاکٹر ایم رضا صاحب سے بات کر سکتے ہیں، ملاقات کر سکتے ہیں اور اپنی پریشانیوں کا حل تلاش کر سکتے ہیں۔ جو بنگلور یا آس پاس کے اضلاع سے ہمارے ناظرین تعلق رکھتے ہیں اور اس پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں، تو وہ ڈاکٹر روشن صاحب سے بات کر سکتے ہیں، ملاقات کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے میں اپنے ناظرین کی طرف سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ دیکھا گیا آج کل کا جو دور چل رہا ہے اس میں کسی کو بھی قلبی یا ذہنی سکون نہیں ہے۔ جس کے پاس کچھ روپے ہیں وہ بھی پریشان ہے، جس کے پاس لاکھوں کروڑوں اربوں روپے ہیں وہ بھی پریشان ہے، مطلب کوئی بھی سکون کی زندگی نہیں جی پا رہا ہے۔ تو آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کس طرح کی سکون کی زندگی جی سکتے ہیں، یا راسک جیمز اینڈ جویلرز یا جواہرات کا کرشمہ جو پڑھ رہے ہیں ان کی کیا مدد کر سکتے ہیں؟ ضرور جناب۔ سب سے پہلے ناظرین کرام السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ایم رضا آپ لوگوں کا پروگرام جواہرات کا کرشمہ میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ راحل صاحب کا سوال ہے، ہر کوئی پریشان ہے، مشکل میں ہے، ٹینشن میں ہے، محلوں میں رہنے والوں کی پریشانی الگ، گرسی میں رہنے والوں کی پریشانی الگ، بلڈنگ میں رہنے والوں کی پریشانی الگ، کروڑ پتی بھی پریشان، مڈل کلاس بھی پریشان، غریب بھی پریشان۔ غریب کو پیسوں کی تمنا، امیر کو سکون کی تمنا، مڈل کلاس میں نہ پیچھے جانے کی تمنا آگے جانے کی تمنا، مطلب پریشان ہیں، ڈسٹرب ہیں، سکون کھو چکے ہیں، لیونگ وتھ اسٹریسفل لائف کہتے ہیں، مطلب دباؤ کی زندگی میں جینا پڑ رہا ہے، دباؤ کے ساتھ زندگی چل رہی ہے۔ یہاں پر بتا دوں، لاسٹ ویڈنسڈے جب میں وشاکھاپٹنم کے دورے پر تھا جہاں پر ہمارا شو روم ہے، ہر ویڈنسڈے جہاں پہ رہتا ہوں میں، تو ایک کلائنٹ ہمارے پاس آئے تھے، وہ ریڈیز ہیں۔ 2012 میں ان کے یہاں پیرالسس ہوا ہے، اسٹروک ہوا ہے، پیرالسس ہوا ہے جس کو لقوہ کہا جاتا ہے نا، وہ اس کا پرابلم ہوا ہے 2012 میں۔ ان کی فیملی والے میرے پاس لے کر آئے تھے کہ کوئی کسی نے بتایا اور ٹی وی وغیرہ پروگرام دیکھے کہ وہاں پر جانے سے شفا ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ، جواہرات سے اچھا راحل بتاتے ہیں۔ تو بہرحال لوگ آئے تھے، جب ڈسکس کر رہا تھا ان کی بیوی مطلب بتا رہے تھے پورا ان کی فیملی کے بارے میں، ایک مہینے میں کم از کم 15 لاکھ روپے کرایہ آتا ہے، پر منتھ 15 لاکھ، 15 لاکھ روپے کرایہ رینٹ آتا ہے ایوری منتھ کو۔ اتنی پراپرٹیز ہیں، بہت سی بلڈنگز ہیں، رہنے کے لیے لوگوں کو کرائے پہ دیے ہیں، اچھی انکم ہے، اچھا پیسہ ہے، ہر چیز ہے۔ اس آدمی کو جو لے کر آئے تھے اس کی بیوی کا ایک ہی کہنا تھا، ڈاکٹر صاحب کاش اللہ نے نہ ہمیں دولت دی ہوتی، صرف سکون بس تھا، میرے ہسبینڈ کو اگر صحت ہی دے دیتی میں کرسی میں بھی رہ جاتی، اس کے ساتھ جھاڑ کے نیچے بھی رہ جاتی، درخت کے نیچے بھی رہ جاتی، میرے کی دولت کی ضرورت نہیں تھی۔
तो आंखों में आंसू शुरू हो गए। मतलब क्या है, इतना पैसा है, हर कुछ होने के बावजूद 2012 से बेचारा बात भी नहीं कर सकता, थोड़ा उसका चेहरा भी बिगड़ा हुआ। उसकी फ़ोटो दिखा रहे थे, वो बता रहा है फ़ोटो दिखा के, मैं पहले ऐसा था अभी ऐसा हो गया, आंखों में पानी आ रहा है, आंसू आ रहा है। ऐसे क्या होता है जब स्ट्रोक आता है तो उन लोगों की आंखों से पानी शुरू हो जाता है, रोना आ जाता है, दिल नरम हो जाता है। स्ट्रोक का मतलब है तमाम जो अंदर की वायरिंग होती है ना, जो नर्व सिस्टम होता है, पूरा मतलब शॉक लगता है। क्या उसमें क्या होता है, खून का दौरा नहीं होता, इंसान बेबस हो जाता है, ना जीने का ना मरने का, ऐसी हालत में हो जाता है। जैसे ही हमने जायचा ओपन किया, बताना शुरू किया, वो लोग परेशान हो गए, अरे आप कैसे बता दे रहे हैं, ये टाइम पे हुआ, ये दिन पे हुआ। तो मतलब क्या होता है, सितारों का गर्दिश में आना इंसान की ज़िंदगी में परेशानियाँ, इंसान सुकून क्यों खो जाता है। कोई अपने आप को मनमानी में आगे बढ़ने की कोशिश करता है, पैसा हर कुछ है, सब कुछ पैसा ही है, पैसे से ज़िंदगी चल जाएगी। कुछ लोगों को गुर्बत, अगर ये खत की रोटी मिल गई बस है हमारे लिए, और कुछ भी नहीं चाहिए। कोई रोटी के लिए मोहताज है, कोई सुकून के लिए मोहताज, हर कोई परेशानी में फंसा हुआ है। इसकी सबसे बड़ी जो वजह होती है, हमारा जो इल्म बताता है, वजह देखिए दीन से दूरी की भी वजह होती है। जो लोग दीन से दूर हो जाते हैं, जो माशरे को मतलब माशरे से दूर हो जाते हैं, जो अपनी ज़िंदगी में जीने की कोशिश करते हैं, आजू बाजू में किसी को सपोर्ट नहीं करते। बहरहाल ये तो अलग अलग टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं, लेकिन हमारा जो इल्म बताता है, सितारों का गर्दिश में आना इंसान की ज़िंदगी में परेशानियां आ जाती हैं। चाहे इंसान महल में रहने दो, या बिल्डिंग में रहने दो, या कुर्सी में रहने दो, क्योंकि इंसान ही होता है। कुर्सी में रहने वाला भी इंसान ही है, बंगले में रहने वाला भी इंसान ही है, महल में रहने वाला भी इंसान ही है। तो हर कोई इंसान ही है। उसके लिए सुकून की ज़रूरत होती है। वो सुकून जो मिलता है अल्लाह ताला की निशानियों में, अल्लाह ताला की नेमतों में, क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान है कुरान मजीद में, हमारी निशानियाँ अक्ल वालों के लिए हमने बिछा रखी हैं। रूए ज़मीन में हमने रंगीते कलर चीज़ें, रंगीते चीज़ें पैदा कर रखी हैं। वो भी उन लोगों के लिए जो अक्ल को इस्तेमाल में लाकर ज़िंदगी में काम में लाते हैं। कुदरत खुदा की बड़ी निशानियां हैं। इसका मतलब क्या होता है, हमने निशानियों को भुला दिया है, हमने नेमतों से फ़ायदा उठाना छोड़ दिया है। मैं बार बार कहते रहता हूँ, नेमत से मुराद है जो चीज़ इंसान को फ़ायदा पहुँचाती है, उसे कहते हैं नेमत। जवाहरत को नेमतुल्लाह कहा गया है। तो ये हिसाब से इस सुकून पाने के लिए, ज़िंदगी में खुश रहने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, अगर सितारे जब गर्दिश में आ जाते हैं, एक बार जानकर उस सितारे को डेवलप करने के लिए अगर हमने जवाहरत का इस्तेमाल किया, यकीन मानिएगा ज़िंदगी में सुकून मिलेगी। बहुत से हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं, जैसे ही वो स्टोन खरीदते हैं, उनका जो फीडबैक रहता है, साहब जब से पहना हो सुकून में हो, खुशी हो, डर चला गया है। हर किसी का नहीं, देखिए मेरे बहुत से क्लाइंट्स देख रहे हैं, शायद उनको भी खुशी होगा। हमारे रासिक के जो क्लाइंट जुड़े हुए हैं हमसे, वो लोगों को सभी को यकीन है, जैसे जवाहरत पहनते हैं, ये एक हफ्ते के अंदर कह देते हैं कि डॉक्टर साहब जब से जैसे हमने अंगूठी पहनी या हमने जैसे लॉकेट पहना, यकीन मानिएगा हमें सुकून है, डर चला गया है, डर नहीं है। बहुत से ऐसे डिप्रेशन केसेस भी हैं, जो लोग बरसों से टैबलेट लिया करते थे, दवाई लिया करते थे, वो लोगों ने जवाहरत पहनने के बाद दवाइयों को छोड़ दिया है, दवाई इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आज मेरे पास एक क्लाइंट आए थे, वो बाहर रहते हैं, मतलब दमस्कस में रहते हैं। वो लोग हमारे पास पहले आए थे तो डिप्रेशन केसेस था, प्रॉब्लम में था, लेकिन दरमियान में कम्युनिकेशन नहीं था। आज वो मिठाई वगैरह थोड़ा गिफ्ट वगैरह लेकर आए, हमारे लिए वाच भी लेकर आए उन्होंने। बताना ठीक नहीं, लेकिन बता दे रहा हूँ, लोगों के लिए खुशी होती है कि वाच भी लेकर हमारे लिए गिफ्ट हो। लाके बता रहे थे, डॉक्टर साहब यकीन मानिए हम बहुत परेशान थे, जैसे ही आपकी अंगूठी पहनी 8 दिन के अंदर हमें सुकून मिल गया, खुशी मिल गई। लेकिन हम बाद में हम अपने काम इतना मसरूफ हो गए, हम आपको याद नहीं कि जब हम इंडिया उतरे तो सोचे कि जब हम पहली बार इंडिया आए थे इतना परेशान थे, मुश्किल में थे, लेकिन इतना सुकून कैसे मिला, ये सुकून कहाँ से मिला। जैसे हमारा दिमाग थोड़ा दौड़ा तो हमें याद आया हैदराबाद में याद आया बंजारा हिल्स, आपके ऑफिस में आए थे हमने आके मुलाकात की 2014 में। जैसे आपके पास मुलाकात की, आपने पूरा बताया, जवाहरत दिया था, हमें अभी खुशी है, सुकून मिल गया है, वी आर लिविंग वेरी हैप्पी लाइफ, मतलब खुद खुशी लगती है। तो ये हिसाब से रेशियो के हिसाब से अगर लगाया जाए 100 मतलब 100% में 90% से ज़्यादा लोगों को सुकून मिल जाता है। या देखिए, याद रखिए, जानिए, सुकून बाजार में मिलने वाली चीज़ नहीं। अभी मैं बता रहा था, महलों में रहने वाले भी परेशान हैं सुकून के लिए, करोड़ों रुपया पैसा रखकर भी सुकून के लिए परेशान है। ऐसा सुकून मिलेगा आपको अल्लाह ताला की नेमतों में, अल्लाह ताला की निशानी में। बहरहाल जो भी प्रॉब्लम्स हैं, परेशानियां हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, सुकून पाने के लिए इंशाअल्लाह ताला जवाहरत का इस्तेमाल कीजिएगा, ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते। क्योंकि मैंने लास्ट हफ्ते कहा था, सितारों का जो 7 सितारे हैं, इंसान की ज़िंदगी में 7 रकम से एक स्टेज होता है जिससे पूरा राबिता होता है। अगर सितारों की गर्दिश शुरू हो गई, इंसान के ऊपर असर करते हैं। जब इंसान पर असर करते हैं, प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। प्रॉब्लम्स क्या हैं? चाहे शादी का प्रॉब्लम हो, चाहे कमाई का प्रॉब्लम हो, दौलत का प्रॉब्लम हो, सेहत का प्रॉब्लम हो, बाहर जाने का प्रॉब्लम हो, नौकरी का प्रॉब्लम जो भी हो,
सभी प्रॉब्लम जो आते हैं सितारों की गर्दिश होने से, उस गर्दिश को सही करने के लिए, ठीक करने के लिए नेमतुल्लाह जवाहरात इंशाल्लाह ताला इसको अपनाने से जिंदगी में सुकून मिल सकता है, स्ट्रेस दूर हो जाता है। सबसे पहले आप जान सकते हैं ये परेशानी क्यों जिंदगी में आ रही है। सबसे बड़ी जो चीज होगी आप जान सकते हैं। देखिए जब बीमारी आती है आपको डॉक्टर क्या करता है, जब तक स्कैनिंग नहीं देखता, जब तक एक्सरे नहीं देखता, वो नहीं बता सकता कि प्रॉब्लम क्या है। लेकिन हमारा इलाम ऐसा है जैसे हमने डेट ऑफ बर्थ ले लिया, बताते हैं कि ये प्रॉब्लम है आपको, ये प्रॉब्लम है, तो आपको प्रॉब्लम वही रहेगा। मतलब क्या है, सितारों का गर्दिश में आना आपकी सेहत को बिगाड़ देता है। सितारों का गर्दिश में आना आपके सुकून को छीन लेता है। सितारों का गर्दिश में आना आपकी नींद को छीन लेता है। दिन को चैन नहीं, रात को नींद नहीं, जिंदगी में क्या है, इंसान तड़पते रहता है। क्योंकि नस्ल आदम को विरसे में जो मिली हैं, मुश्किलात मिली हैं, परेशानियां मिली हैं, इंसान नजर की ठोकरें खाना मिला है, लेकिन उससे बाहर निकलने के लिए नजात की राहें भी हमारे सामने मौजूद हैं। तो हम उस जो राहें हैं उस राहें से इंशाअल्लाह ताला फायदा उठाएंगे तो जिंदगी में खुशहाल रह सकते हैं। जी बिल्कुल सही बात है। और बहुत से लोगों को फ़ायदा हुआ है, जिस तरह से लोग कॉल करते हैं डॉक्टर साहब, लेकिन किन लोगों को फ़ायदा नहीं होता। जैसे आपने कहा कि 90% जो लोग हैं उनको फ़ायदा होता है। सही बात है कि कुछ लोगों ने शिकायत करी, तो जब आपने सवाल पूछा तो उन्होंने यही बोला कि मैंने जेम्स जो थे फला जगह से ख़रीद लिए, फला जगह से ख़रीद लिए। अगर नकली जेम्स ख़रीदेंगे तो वो तो फ़ायदा नहीं करने वाले हैं। जाहिर बात है जो आपके यहाँ शोरूम में मिलते हैं वो सर्टिफाइड होते हैं, उनको ही पहनने से फ़ायदा होता है, जिसके बारे में आप अक्सर बोल चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, इस प्रोग्राम के पहले कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं ये कॉलर कहाँ से, इनका क्या सवाल है। हेलो। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं राजा राम बोल रहा हूँ, मोगा पंजाब से। नाम फिर से बता दीजिए। राजा राम। राजा राम जी, पंजाब से बात कर रहे हैं आप? हाँ जी हाँ जी जी राजा राम जी अपने बेटे के बारे में पूछना चाहते हैं। बेटे का नाम बताइए। नीरज कुमार। नीरज कुमार, उनकी जन्म तिथि बता दीजिए। 10 अगस्त 1981। 10 अगस्त 1981। समय मालूम है? बर्थ प्लेस है मुक्तसर पंजाब जी। टाइमिंग जी टाइमिंग बता दीजिए। 11:07 AM। 11:07 AM जी। डॉक्टर MM रजा साहब हमारे साथ मौजूद है, आप उनके बारे में, नीरज के बारे में उनसे बात कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। ठीक है जी। नमस्कार जी राजा राम साहब। हाँ जी नमस्कार जी। पंजाब से बोल रहे हैं आप? हाँ जी पंजाब से बोल रहा हूँ। प्रोग्राम देखते हैं हमारा? हाँ जी देखते हैं, बहुत दिनों से ट्राई कर रहा था लाइन पे आने की, लेकिन आ नहीं रहा था काम। बेटे का जन्म हुआ है मंडे के दिन? हाँ जी। हाँ जी, थोड़ा बच्चे का प्लानिंग में फेल्यूर है जी, थोड़ा मतलब लाइफ में सेटलमेंट नहीं अभी तक। हाँ जी कोशिश तो बहुत करता है लेकिन सेटलमेंट नहीं मिला है। मेर्क्यूरी कमजोर है, साथ में सैटर्न कमजोर है, सैटर्न सिटिंग इन द 12th हाउस। इसमें क्या होता है, बच्चे में चालाकी है, हेल्पिंग नेचर है, हार्ड वर्कर है, मेहनत करता है, लेकिन ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहा है। हर काम में डिले, हर काम में पोस्टपोन, क्योंकि सैटर्न जब 12वें घर में बैठ जाता है इंसान के अक्सर काम को बिगाड़ देता है। काम होते होते रुक जाना, जैसे कहते हैं कि 90% काम हो गया, अभी थोड़े में काम होने वाला है, बाद में क्या होता है फिर शुरू से करना पड़ता है। मतलब एक कदम को आगे बढ़ाता है इंसान, 5 कदम पीछे हो जाता है। वही मिसाल है नीरज कुमार के जायचे में। साथ में मेर्क्यूरी कम, जिसमें क्या होता है लाइफ में ना स्टेबिलिटी है, ना डेवलपमेंट है, ना इंप्रूवमेंट है, ना सेटलमेंट है, सुकून भी नहीं है। साथ में देखा जाए देयर इज नो पीसफुल मैरिड, शादी के लाइफ में भी हैप्पीनेस नहीं है, डिस्टर्ब है। मतलब क्या होता है, अगर कंक्लूजन बता दूं तो एक तरफ से जॉब की परेशानी है, एक तरफ से हर काम में मुश्किलात हैं, हर काम में देरी होती है, दूसरा पर्सनल लाइफ भी ठीक नहीं है। ये सारे मुश्किलात हैं नीरज कुमार के जायचे में। अब इससे बाहर निकलना है। थोड़े हेल्थ का इश्यूज भी दिखा रहा है, एग्जिट पार्ट ऑफ द बॉडी मोशन में प्रॉब्लम आएगी, डिस्टर्बेंस रहेगा, थोड़ा पाइल्स पिस्टुला आने की भी इम्कानात ज्यादा दिखा रहे हैं। ये सारे परेशानियां हैं नीरज कुमार के अंदर। अब इससे बाहर निकलना है। बाहर निकलने के लिए आपके बेटे को चाहिए नीलम, ब्लू सफेद कहते हैं 3 कैरेट, साथ में एमराल्ड पन्ना कहते हैं 3 कैरेट, दोनों बनाकर पहनाएंगे इंशाल्लाह ताला, जिसके पहनने से जॉब में सेटलमेंट मिलेगा, सेहत अच्छी रहेगी, वर्क ऑन टाइम हो जाएगा। जो काम में जो रुकावटें आ रही हैं, जो काम पोस्टपोन्ड हो रहा है, जो काम डिले हो रहा है, इंशाल्लाह ताला वक्त पर काम होगा, ऑन टाइम में काम होगा, जिंदगी में खुशी रहेगी। विश यू ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही? मैं यहाँ कर्नाटक बेलगाम से बात कर रहा हूँ जी। अपना नाम बताइए। मेरा नाम बीबी फातिमा है। बीबी फातिमा, आपको अपने बारे में बात करना है?
हाँ सर, मेरे बारे में बता। अपनी तारीख पैदाइश बता दीजिए, डेट ऑफ बर्थ। 29 जुलाई जी। 1991। वक्त मालूम है, टाइमिंग मालूम आपको पैदाइश? वक्त जुमेरात 7 से 10 सुबह 10 या मिनट। सुबह या शाम? शाम को, मगरिब के। ठीक है। आप क्या जानना चाहती हैं फातिमा साहिबा? डॉक्टर मेरी एम एम रजा शादी साहब के हमारे बारे साथ में जानना मौजूद है। हैं, आप उनसे खुद सवाल कर सकती हैं। जी डॉक्टर साहब। सलाम अलैकुम। वालेकुम सर। सलाम अलैकुम सर। फातिमा साहिबा, जुलाई 29 है ना? हाँ, 29 जुलाई 1991। उस दिन मंडे का दिन आता है, जुमेरात नहीं आता। मंडे वो अम्मी बताएं सर, मुझे तो मालूम नहीं है। मंडे का दिन है और शाम का टाइम है, मगरिब का टाइम है। हाँ, मगरिब का 7-10 को। माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए, आपका जायचे में खुददार दिखा रहा है। खुददार मतलब खुद जॉब करेंगी, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं आप, खुद जॉब करेंगी, हेल्पिंग नेचर भी हैं, हार्ड वर्कर भी हैं, खुद नौकरी करेंगी। आपके जायचे के हिसाब से अगर देखा जाए टीचिंग फील्ड दिखा रहा है, एक अच्छी टीचर बनेगी, थोड़ा मेहनत करेंगे इंशाल्लाह तो लेक्चरर और प्रोफेसर तक भी जाने के इम्कान ज़्यादा हैं। पढ़ाई है, लेकिन आपके जायचे में हाउस ऑफ कोऑपरेशन, हाउस ऑफ मैरिज जिसको कहा जाता है, तो डैमेज। इसमें क्या होता है, रिश्ते आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं, शादी में रुकावटें कहते हैं। कुछ रिश्ते को आप पसंद नहीं आते, कुछ को आप मतलब कुछ रिश्ते आपको पसंद नहीं आते। इसमें क्या होता है, ताख़ीर हो जाती है, जिसकी वजह से फैमिली में थोड़ा परेशानी रहती है। स्पेशली मदर के थोड़ा सिक हो जाती है, माँ की तबीयत भी ठीक नहीं दिखा रही है। इसका मेन वजह है जायचे में वीनस भी कमज़ोर हो चुका है, जिसकी वजह से परेशानी आ रही हैं। साथ में मर्क्यूरी भी ख़राब हो चुका है। हेल्थ का भी थोड़ा डिस्टर्बेंस दिखा रहा है, न्यूरोलॉजिकल ट्रबल कहते हैं, रगों की प्रॉब्लम भी आएगी आपको। थोड़ा कमज़ोरी है, वीकनेस है, खाने पीने में ध्यान नहीं रहेगा। शादी में प्रॉब्लम तो दिखा रही है। इससे बाहर निकलने के लिए आपको चाहिए पन्ना एमराल्ड 3 कैरेट का, साथ में सफ़ेद पोखराज वाइट सफ़ेद 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिए। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे, शादी हो जाएगी, सेहत अच्छी रहेगी, आप तंदुरुस्त हो जाएंगी। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में, और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं किंग ऑफ जेम्स, एमिनेंट जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर एम एम रजा साहब। रजा साहब, एक बार फिर आपका खैर मकदम है ब्रेक के बाद। और ब्रेक के बाद पहले कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं ये कॉलर कहाँ से है और इनको किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहिबा, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं नेहा बात कर रही हूँ, राजस्थान से। नेहा साहिबा, राजस्थान में किस शहर से बात कर रही हैं? मेरे को पापा के बारे में पूछना था। जी, पापा का नाम बताइए। पापा का नाम जाफर हुसैन। जाफर हुसैन। उनकी तारीख पैदाइश मालूम है आपको? जी, 10 अगस्त 1967। वक्त मालूम है आपको? नहीं, वक्त नहीं मालूम है। जी, डॉक्टर एम एम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे अपने पापा के बारे में पूछ सकती हैं। जी डॉक्टर साहब। मोहतरमा, सलाम अलैकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? जी, पापा के बारे में पूछना था हमें। पापा का हेल्थ कैसा है? पापा का हेल्थ पूछना था। बाकी काम धंधा अच्छे से नहीं चलता है, पैसा आता है तो टिकता ही नहीं है। देखिए, पापा के जायचे हिसाब से अगर देखा जाए तो हेल्थ की इश्यूज भी हैं, कारोबार में तरक्की भी नहीं है। मेहनत तो करते हैं बेचारे, लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं है। 2012 के बाद कारोबार में नुकसान दिखा रहा है, जिसकी वजह से फाइनेंस मतलब पैसा पूरा रुक जाता है, फंस जाता है, खर्जा भी हो जाता है। ये परेशानी है। साथ में ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हेल्थ के हिसाब से अगर देखा जाए, बोन की प्रॉब्लम है, स्पाइनल कॉर्ड प्रॉब्लम भी आएगा, जो पीठ के जो स्पाइनल कॉर्ड होता है उसका प्रॉब्लम दिखा रहा है, हड्डियों का दर्द भी दिखा रहा है, सेहत भी ख़राब हो रही है, कारोबार में तरक्की नहीं है, पैसा फंसा हुआ है, कर्जा भी कर लेते हैं। नतीजा क्या होता है, ज़िंदगी ज़ीरो की है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, परेशान हैं, डिस्टर्ब हैं, पैसों की प्रॉब्लम है, कारोबार की प्रॉब्लम है, सेहत की प्रॉब्लम। वजह सन मून दोनों कमज़ोर होकर, जब ये दोनों कमज़ोर हो जाते हैं, जब सन मून गर्दिश में आ जाते हैं, इंसान को परेशान करते हैं, सेहत को लेकर,
मतलब इसी तरीके से कारोबार को लेकर और सोच को लेकर हर चीज़ में परेशानी खड़ी कर देते हैं। इससे बाहर निकलने के लिए आपके पापा को चाहिए एक याकूत रूबी 3 कैरेट का, साथ में एक मोती, केशी पर्ल कहते हैं, सच्चा मोती रहना है 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहने इंशाल्लाह ताला, जिसके पहनने से सुकून मिलेगा, कारोबार में तरक्की मिलेगी। सबसे बड़ी जो चीज़ होगी, सेहत अच्छी हो जाएगी, जो बोन्स की प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी, ज़िंदगी खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी साहब, मैं गोदावरी करीमनगर डिस्ट्रिक्ट, अभी नया जो बना पेद्दापल्ली डिस्ट्रिक्ट है ये जी, अपना नाम कोयले बताइए। की खदान में काम करता हूँ मैं। मेरा नाम महमूद खान, मेरी पैदाइश जून 30 जी। तारीख सन 1966 है। फिर से तारीख बताइए, कौन कितनी जून? 30 जून 30 जून जी, 30 जून 1966 66। जी, 66 ना? जी साहब। 66, 1966 ना? जी 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 जी। टाइम मालूम है आपको आपकी पैदाइश का? नहीं साहब, नहीं वक्त का नहीं। जी, डॉक्टर एम एम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे डायरेक्ट सवाल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। सलाम वालेकुम महमूद खान साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह सलामत रखे, माशाअल्लाह। कैसे हैं? जी साहब, हालात के हिसाब से कुछ हमारे भी कुछ जरा हालात के हिसाब से परेशान हैं, तरक्की रुकी हुई है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। 2014 के बाद तो परेशानियों ने पीछा पकड़ा हुआ है, ये पीछा और आगे बढ़ने वाला, इसको रोकना है, ख़त्म करना है प्रॉब्लम को। जायचे में अगर देखा जाए, जुपिटर कमज़ोर, तरक्की रुकी हुई है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं है। सन कमज़ोर, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम आता है, खाने पीने में ध्यान नहीं रहता, थोड़ा परेशान डिस्टर्ब है। लूजिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो हिम्मत 2014 से पहले थी अभी वो हिम्मत नहीं है, थोड़ा हिम्मत हार चुके हैं, अंदरूनी हिम्मत ख़त्म हो चुकी है, डिस्टर्ब है थोड़ा। कारोबार में तरक्की रुकी हुई है, फाइनेंशियल मैटर में थोड़ा परेशानी दिखा रही है। उससे बाहर निकलने के लिए आपको चाहिए एक पुकरा येलो सफ़ेद 3 कैरेट का, साथ में याकूत 3 कैरेट का, रूबी कहते हैं, दोनों बनाकर पहनिए इंशाल्लाह ताला। सेहत अच्छी रहेगी, कारोबार में तरक्की मिलेगी, फाइनेंशियली ग्रोथ मिलेगा, ज़िंदगी में खुशहाल रहोगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं ये कर्नाटक से बोल रहा हूँ सर, बागलकोट से। अपना नाम बताइए। आरिफ मोहम्मद। आरिफ मोहम्मद। यस सर। जी, आपको अपने बारे में बात करना है? हाँ सर, मेरे को अपने बारे में बात। अपनी तारीख पैदाइश बता दीजिए। सर 12 दिसंबर जी। 1989। वक्त बताएंगे अपनी पैदाइश का? वक्त सुबह 11 से 12 के दरमियान। ठीक। डॉक्टर एम एम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे सवाल कर सकते हैं अपने बारे में। जी डॉक्टर साहब। सलाम वालेकुम आरिफ खान। वालेकुम अस्सलाम सर, आपका शो बहुत अच्छा लगा सर देख के। शुक्रिया हम जनाब। हमेशा रखते हैं सर। शुक्रिया जनाब, अल्लाह सलामत रखे। जॉब को लेकर परेशान हो? हाँ सर, जॉब को लेकर परेशान हूँ। हाँ जी, जॉब को लेकर परेशान हो, डिस्टर्ब हो। जायचे में तो वही दिखा रहा है, जॉब सेटलमेंट नहीं है। थोड़ा आपके नेचर के अंदर अगर देखा जाए इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, एहसास कमतरी। हर चीज़ कर सकते हैं, लेकिन करने से पहले मेरे से होगा कि नहीं होगा, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, अपने आप में सोच लेते हैं। ग्रुप फोबिया है, मतलब 4 लोगों के बीच में बात करने थोड़ा डर लगता है, शर्म महसूस करते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, थोड़ा टेंशन है थोड़ा, क्योंकि आपके मेंटलिटी में देखा जाए, आपके नेचर में देखा जाए, ये सारी चीज़ें दिखा रही हैं। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, ग्रुप फोबिया है, थोड़ा मूड स्विंग्स है, कन्फ्यूजन ज़्यादा, कभी बाहर जाऊँ, कभी इधर ट्राई करूँ, गवर्नमेंट जॉब ट्राई करूँ, अपने आप में सोचते रहते हैं, लेकिन सेटलमेंट नहीं मिल पा रहा है, ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। जायचे में दिखाता है जिम्मेदारी ज़्यादा है, करना है, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। हेल्थ के हिसाब से अगर देखा जाए, लेफ्ट साइड में बाएं तरफ हेडेक होता है, सर का मतलब आधा सर का दर्द ज़्यादा होते रहता है आपको। ये सारे परेशानियां आपके जायचे में हैं। साथ में 2014 3 साल से कम अज़ कम लगातार नाकामी पीछे पड़ी हुई है, जॉब सेटलमेंट नहीं आ रहा है, इंटरव्यूज को जाते हैं मतलब फेल हो जाते हैं, जॉब नहीं मिल पा रहा है। ये परेशानी आपके जायचे में, अगर तुमने इसको डेवलप नहीं किया, प्रॉब्लम बढ़ते रहेगा। याद रख लीजिएगा, ये बात क्यों बता रहा हूँ, बहुत से लोग हमारे पास आते हैं,
डॉक्टर साहब 5 साल से खाली हूँ, 8 साल से खाली हूँ, 10 साल से खाली हूँ। क्यों खाली थे? मैं कोशिश कर रहा था, ट्राई कर रहा था, नेक्स्ट ईयर अच्छा होगा, नेक्स्ट ईयर अच्छा होगा, ऐसा आगे बढ़ जाता है। क्योंकि ऐसा ना हो कि ज़िंदगी में आगे बढ़े, क्योंकि अभी आपका एज जो देखा जाए 89 है, 26 साल हैं, अभी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। आपको आगे बढ़ने के लिए, ज़िंदगी में खुशहाल रहने के लिए आपको चाहिए एक एमराल्ड पन्ना कहते हैं 3 कैरेट का, साथ में नीलम ब्लू सफ़ेद 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनी, इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर। राहिल साहब, यहाँ पर एक छोटा लोगों के लिए सजेशन बता दूं कि बहुत से लोग हमारे पास आते हैं, मैं बार बार कहता भी रहता हूँ, जॉब नहीं मिल रहा है, कारोबार में तरक्की नहीं है, क्या काम करते हैं? खाली हैं। कब से खाली हैं? 2005 से खाली हूँ, 2003 से खाली हूँ। उस ज़माने में सऊदी गया था, आया, तब से मेरे को काम नहीं मिला। क्यों काम नहीं मिला? आपने कोशिश क्यों नहीं? बहुत सब कोशिश किया, लेकिन दिमाग सही काम नहीं करा। सोच रहा था ये साल मेरे लिए ठीक नहीं, नेक्स्ट ईयर सही हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर सही हो जाएगा। याद रखिएगा, जैसे अगर आपको अब तुम टाल मटोल करोगे, प्रॉब्लम बढ़ते रहेगा। मैंने एक मिसाल भी दी थी, अगर एक इंसान को एक दरख्त को उखाड़ना है तो आज ही उखाड़ देना है। जब इंसान दरख्त उखाड़ने की कोशिश करता है, दरख्त, झाड़ जिसको कहते हैं, मतलब ट्री, उखाड़ने की कोशिश करता है, जब नहीं आता तो इंसान सोचता है कि 1 साल के बाद बॉडी बिल्डिंग बना कर आऊँगा, ताकत बना कर आऊँगा, वर्जिश करके आऊँगा, बाद में उखाड़ूंगा। तो मानिएगा, यकीन मानिएगा, दरख्त स्ट्रांग हो जाएगा, दरख्त की जड़ें और मजबूत हो जाएंगी, आप नाकाम हो जाओगे, आप कमज़ोर हो जाओगे। क्योंकि इंसान जैसे जैसे उम्र बढ़ती है कमज़ोर होता जाता है, दरख्त जैसे जैसे बढ़ जाता है जड़ें मजबूत हो जाती हैं। आपने देखा होगा इमली का झाड़ क्या होता है, 300 साल 200 साल जिसकी जड़ें, आपने बहुत से दरख्त देखा होगा बहुत से गिर जाते, लेकिन जो इमली का झाड़ जो होता है इतनी जड़ें मजबूत कर लेता है, उखाड़ पाना ही मुश्किल रहता है, जड़ें अंदर ही रहती हैं। हाँ, इतनी फैला जाता है जड़ों को। इमली के झाड़ की मिसाल है जिंदगी में परेशानियां। क्यों बता रहा हूं? बहुत से लोग 5 साल से खाली, 10 साल से खाली, 8 साल से खाली, परेशान, डिस्टर्ब। क्यों कोशिश नहीं किया? इंतजार में थे। क्यों ना आने वाला है आपकी जिंदगी, आपको आगे बढ़ना है। किस्मत कहां से चेंज होगी? और बहुत से लोग कहते हैं अल्लाह ताला ने किस्मत में लिखा होगा, यही बेकारी है। यकीन मानिएगा, किस्मत को बदल सकते हैं। मैंने पहले बार बार कहा था, लास्ट वीक भी कहा था। किसी अरबी ने आके कहा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि या रसूल अल्लाह, लौहे महफूज में अल्लाह ताला ने हर इंसान की किस्मत लिख दी है, तो फिर इसको कोशिश क्यों करना है? इसको क्यों फिर मतलब कोशिश लगाना है? जो होना है वही होगा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं 2 चीज़ों के अलावा सब चीज़ को बदला जा सकता है। 2 चीज़ें क्या हैं? एक बूढ़े इंसान को जवानी में तब्दील करना नामुमकिन, एक मुर्दे को जिंदा करना नामुमकिन। ये 2 चीज़ें छोड़कर हर चीज़ को बदला जा सकता है। क्योंकि कुरान मजीद में इंसान के लिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने इंसान को मुख्तार पैदा किया है, इख्तियार देकर पैदा किया, आज़ाद पैदा किया है। तो वाज़े क्या होता है? आज़ादी हमारे अंदर है, तो हमें आगे बढ़ना है। अगर आपने किस्मत का लगा लिया, घर में बड़े किस्मत में जो होगा वो होना है। अगर कोई पैसा मतलब बड़ा आदमी बनना है, दिल में सोच लिया कि बड़ा आदमी कैसे भी बनूंगा, किस्मत में घर में बढ़ जाएगा, बड़ा आदमी बनने वाला नहीं है। जब तक कोशिश नहीं करेगा इंसान जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएगा। कितनी बार मैंने एग्जांपल दे चुका हूँ, जब इंसान बीमार हो जाता है, बीमारी से शिफा देने वाली अल्लाह ताला की ज़ात है, नजात वहीं से मिलेगी, लेकिन दवा आपको यहाँ से लेना होगा। डॉक्टर का काम क्या होता है? डॉक्टर ऑपरेशन करता है, दोनों चमड़ियों को चाक कर देता है, ऑपरेशन करने के बाद चमड़ियों को सील देता है, घर में जाकर दुआ करता है, परवरदिगार मैंने तेरे बंदे का ऑपरेशन किया है तो उसको शिफा दे दे, शिफा वहीं से मिलेगी। डॉक्टर ने सिर्फ तागा डालकर आपको सिलवाया, सी दिया, सीने के बाद जो चंगा की जो मलते हैं ना, जिसको जो हील जो होता है ना, परवरदिगार जाती करती है। लेकिन डॉक्टर को चाहिए कि इलाज करे, इलाज करने वाला। क्योंकि मेरे पास एक डॉक्टर है, तो वही बता रहे थे एग्जाम्पल, डॉक्टर साहब आपके प्रोग्राम देखता हूँ माशाल्लाह बहुत अच्छे लगते हैं, सुन्नत के दायरे में बताते हैं, माशाल्लाह से बहुत अच्छा लगा। मैं खुद डॉक्टर हूँ, थोड़ा परेशानी फंसा हूँ, बहरहाल थोड़ा प्रोमिनेंट मतलब अच्छे माने हुए डॉक्टर हैं। तो बता रहे थे हम जब ऑपरेशन करते हैं तो मतलब सीने को चाक कर देते हैं, पूरा सीना निकाल देते हैं, दिल को बाहर निकाल कर हम ऑपरेशन करते हैं। दिल को सही करने के बाद जब हम उसको सिलवा मतलब सी देते हैं, घर में आने के बाद नमाज पढ़ते हैं, दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि इसको बचा दे। मतलब क्या है? दुआ डॉक्टर भी करता है पेशेंट के लिए, क्योंकि जिम्मेदारी है ना। तो ये हिसाब से हर मज़ाहिब के डॉक्टर क्या करते हैं? ऑपरेशन करने के बाद वो भी दुआ करते हैं। देखिए डॉक्टरों का मकाम क्या होता है, इसलिए क्या कहते हैं डॉक्टरों को खुदा के बाद खुदा का मकाम दिया गया है कि डॉक्टरों के ऊपर इतना भरोसा कर सकते हैं आप, क्योंकि मतलब बचाने वाला है, मतलब बचाएगा तो अल्लाह ताला की ज़ात है, लेकिन डॉक्टर का मकाम भी बोल के, क्योंकि डॉक्टर अपना फरीजा अंजाम देने के बाद घर में जाकर दुआ भी मांगता है।
تو ڈاکٹر اپنا کام کرنے کے بعد شفا وہیں سے ملے گی. تو مطلب واضح کیا ہوتا ہے, پریشانیاں جب زندگی میں آتی ہیں, مشکلات جب زندگی میں آتی ہیں, ہمیں آگے بڑھنا ہے. آگے بڑھنے کے بعد ہی شفا آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہی ملنے والی ہے. ویسے بھی کسی بھی کامیاب انسان کی اگر آپ ہسٹری پڑھیں گے, تاریخ پڑھیں گے, تو یہی ہے کہ وہ انسان جو تھا جد و جہد میں لگا رہا, اس کے بعد اس کو مقام ملا. یہ نہیں کہ ہم آج کی بات کل پہ ڈالیں, کل کی بات پرسوں میں ڈالیں, تو ایسے لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے. صحیح فرمایا آپ نے. تاریخ گواہ ہے کہ جتنے بھی جو بڑے بڑے لوگ ہیں جن کے لیے گوگل میں لکھا گیا, جن کے لیے مطلب ویکیپیڈیا جو بنایا گیا ہے, ہر کوئی بڑا آدمی جھوپڑی سے نکلا ہوا ہے, جھوپڑی سے نکلا ہوا آدمی ہے. ہر کوئی جھوپڑی سے نکل کر وہ مقام کو پہنچا ہوا ہے. تو یہ حساب سے انسان نے جتنی کوشش کی اتنا کامیابی نے قدم چوما. تو ہمیں چاہیے 5 سال سے خالی, 8 سال سے خالی, تو آگے بڑھنا ہے. ایک بار جاننا ہے مشکلات کیوں آ رہی ہیں, کیونکہ ہم دیکھیے چاند کو گہن ہے, ستاروں کی پرابلم ہے. چاند گہن ہے, سورج گہن ہے, جانتے ہیں نا, معلوم ہے نا, چاند کو گہن, سورج کو گہن. تو ہم انسان ہیں تو ہمیں بھی گہن لگتا ہے. جب ہمیں گہن لگتا ہے باہر نکلنے کے لیے, انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہمارے سامنے موجود ہیں, جس کو نعمت اللہ کہتے ہیں. جواہر انشاءاللہ تعالیٰ اس کو اپنائیے گا, زندگی میں خوشحال رہ سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جواہرات کا کرشمہ. وقت ہو چلا یہاں پہ ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. آپ دیکھتے رہیے جواہرات کا کرشمہ. ناظرین, بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام جواہرات کا کرشمہ میں, اور آپ کے سوالوں کے جوابات دینے کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں ڈاکٹر ایم رضا صاحب. رضا صاحب, ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. اور بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے بہت اچھی بات بتائی کہ مطلب چاند ہوں, تارے ہوں, سب کو جو ہے گرہن لگتا ہے. اسی طریقے سے زمین کو بھی اگر ہم دیکھا جائے تو زمین کو بھی گرہن لگتا ہے. جیسے وہ زلزلہ آتا ہے, پانی میں طوفان آتا ہے, تو دنیا کی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے رکھا ہے. چاہے زمین ہو, چاہے آسمان ہو, ہر جگہ پہ پرابلمس آنے والے ہیں. اس کے لیے مطلب سلوشن بھی ہے. تو انسانوں کے لیے سلوشن ہے. جیسے کہ زلزلوں کے لیے, چاند گہن کے لیے, سورج گہن کے لیے, جس کے لیے دعا کرنا ہے, نمازیں بتائی گئی ہیں, دعائیں بتائی گئی ہیں کہ دعا کرو گے پرابلم نہیں. کیونکہ چاند اور سورج زمین کے ایک حصہ ہیں جینے والوں کے لیے. میں نے لاسٹ ہفتے میں کہا تھا, جب پہلی تاریخ جب چاند دیکھتے ہیں تو دعا مانگو کہ اے چاند, تیرا خالق بھی ایک, میرا خالق بھی ایک, تجھ کو پیدا کرنے والا بھی ایک, مجھ کو پیدا کرنے والا بھی ایک, تجھ کو بنایا گیا میرے لیے. کیوں میرے لیے بنایا گیا؟ ڈھکی ہوئی چیزوں کو دیکھ پاؤں, دریاؤں کو دیکھ پاؤں, راستوں کو دیکھ پاؤں. چاند کے بغیر دیکھ سکتے تھے آپ؟ سورج کے بغیر دنیا دیکھ سکتے تھے آپ؟ اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو بنایا تاکہ ہم راستے دیکھ سکیں, ایک دوسرے کو دیکھ سکیں, ڈھکی ہوئی چیزوں کو دیکھ سکیں. تو خدا کا ہم کہتے ہیں نا کہ اپنا پروردگار کی کن کن نعمتوں کو چھٹلاؤ گے. تو یہ حساب سے تو ہمیں چاہیے کہ چاند کے لیے ہم کیا دعا کرتے ہیں کہ چاند کو بولنے کے بعد کہتے ہیں اے چاند, میرے لیے خوشیاں لے کر آنا, پریشانیوں کو ختم کر دینا, یہ مہینے میں میرے کو پریشان نہ ہونے دینا. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے. مطلب ہمیں چاہیے کہ دعا کریں, کیونکہ ستارے جو ہیں گردش میں ڈال دیتے ہیں. تو ہمیں ہر چیز معلوم ہے, فالو کرنا معلوم ہے, لیکن پھر بھی انسان پریشان ہے, مایوس ہے, مشکل میں پڑا ہوا ہے, ٹینشن میں ہے. اور بہت سے لوگ ہوتے ہیں کتنی نمازیں پڑھتے ہیں, کتنے روزہ رکھتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان لے رہا ہے. نمازوں کا اجر ملے گا ضرور, روزوں کا اجر ملے گا ضرور, ہر چیز کا اجر آپ کو ملنے والا ہے, لیکن ہر پریشانی سے باہر نکلنا. جیسے انسان بیمار ہو گیا, ایگزامپل بتا دیتا ہوں یہاں پر راہیل صاحب, 2 منٹ کے لیے. راستے میں اگر کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو بندے کو مسجد, ٹیمپل لے کر جاتے ہیں یا ہسپتال لے کر جاتے ہیں؟ ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں. لوگوں کو سمجھنا ہے نا. ہر کوئی کہتا ابھی میں آنے سے 1 گھنٹہ پہلے پتا رہتا ڈاکٹر صاحب کتنے نمازیں, کتنے روزے. دیکھیے اس کا اجر الگ ہے, اس کا الگ ہے. جب ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے یا بندہ گر جاتا ہے تو اسپتال جاتے ہیں, کیونکہ دوائی کے بعد ہی شفا ملنے والی ہے. یا من اسمہ دوا و ذکرہ شفا, پروردگار کا جو نام ہوتا ہے تیری ذات ہی دوا, تیرا ذکر ہی شفا. لیکن یہ ایک ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے ہم جیسے بندوں کے لیے. تو ہمیں چاہیے کہ ذریعے کو اپنائیں, بعد زندگی میں آگے بڑھے. دیکھ انسان کتنا چالاک ہے, کتنا ہوشیار ہے. مار لگنے پر بھاگتا ہے اسپتال, بعد میں کہتا ہے کتنی نمازیں پڑھو. مطلب کیا ہے, اس کا الگ ہے, کبھی اس کو نہیں ملانا ہے. اس کا اجر ملنے والا ہے, ضرور ملے گا. آپ کی دنیا بسے گی, زندگی خوشحال رہے گی, امتحان آپ ختم ہو جائے گا, عاقبت بخیر ہوگی. آپ کو آگے بڑھنا ہے کیونکہ فریضہ ہے, فریضہ انجام دے رہے ہیں آپ, اس میں خوشی ملے گی, آگے بڑھیں گے آپ. لیکن جب پرابلمس آتے ہیں, جس طرح اسپتال بھاگتے ہیں, اسی طریقے سے جاب کا مسئلہ ہو, شادی کا مسئلہ ہو, سکون کا مسئلہ ہو, کاروبار کا مسئلہ ہو, نوکری کا مسئلہ ہو, فارن جانے کا مسئلہ ہو, صحت کا مسئلہ ہو, کوئی مسئلہ ہو,
उस मसले से बाहर निकलने के लिए इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की निशानियां, अल्लाह ताला की नेमतें हैं, जवाहरात, इंशाअल्लाह इसको अपनाइएगा, जिंदगी में खुशहाल रह सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कुछ जो काम होते हैं कुछ आखिरत के लिए होते हैं, कुछ दुनिया के लिए होते हैं। हम जैसे आपने मिसाल दी हाथ टूटने की, तो जाहिर बात है कि हम हाथ टूट के इधर उधर जाएंगे तो दुनिया भी हमारी ख़राब हो जाएगी, हम कुछ काम नहीं कर सकते। हाथ सही हो जाएगा उसके बाद ही हम इबादत कर सकते हैं। हमें बड़ों ने बताया, देखिए आज हमें जो मिला है, आज हम जो कपड़े पहने हुए हैं, सूट बूट पहने हुए हैं, हमारे से पहले वाले इंसान जानवरों के साथ रहा करते थे, गारों में रहा करते थे, कितने लोगों ने कुर्बानी दी है ये जिंदगी हम देने के लिए। क्या हमें बताया था कि ऐसी दुनिया होगी? हमसे पहले वालों ने रिसर्च किया, क्या हमें मालूम था कि चावल खाओ कहीं लिखे था, गेहूं खाओ कहीं लिखे था? हमारे से बड़ों ने उसको रिसर्च किया, हम तक पहुंचाया इस चीजों को। पुराने जमाने का इंसान जानवरों के साथ गारों में रहा करता था, न जाने बाद में मालूम हुआ कि सांप के अंदर जहर होता है, शहर फाड़ कर खा जाते हैं, भेड़िए बाद में मालूम हुआ इंसानों को। इंसान को साबिका पड़ा। हम देखते हैं हिस्ट्री में जाते हैं, जब इंसान उस जमाने से जो है गारों में रहा करता था, जिसके साथ रहने वाले जानवर थे, तजुर्बा बढ़ता गया, एक्सपीरियंस बढ़ता गया, तजुर्बा बढ़ता 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 आज साइंस इतना टेक्नोलॉजी किया, इंसान आज सूट बूट में बैठा हुआ है, कारों में फिर रहा है, घूम रहा है, ऐशो आराम में है। आज अपने आप इतना महफूज बना लिया है, घर के बाहर प्रोटेक्शन है, इलेक्ट्रिसिटी, अगर कोई भी घर के अंदर पार भी नहीं कर सकता, इतना महफूज अपने आप को बना लिया है। लेकिन ये महफूज बनाने के लिए कितनी कुर्बानियां इंसानों को देनी पड़ी है, हमारे बड़ों को मालूम है ना, हर कोई जानता है ना। तो पुराने जमाने का इंसान पहाड़ों में रहा करता था, गारों में रहा करता था। तो ये हिसाब से हमें जो तजुर्बे मिले हैं, इस तजुर्बे से हमें फायदा उठाना है। जवाहरात भी आज ऐसी चीज नहीं है, मतलब हजारों साल से ये चला आ रहा है। मैं पहले भी कहा था, जम थेरेपी को जो कहते हैं तिब्बे सुन्नती के नाम से जाना जाता है, मतलब मेडिसिन ऑफ ट्रेडिशनल, तिब्बे सुन्नती, मतलब सुन्नत के दायरे में जवाहरात से प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है बहरहाल। तो ये हिसाब से हर प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मेरा नाम मोहम्मद सिद्दीक है, मैं मैसूर से बोल रहा हूँ। मोहम्मद सिद्दीक मैसूर से बात कर रहे हैं, आपको अपने बारे में बात करना है? जी जी। अपनी तारीख पैदाइश बता दीजिए। 8 अक्टूबर जी 1990। 8 अक्टूबर 1990 ना जी। वक्त मालूम है आपको? 5:10। 5:10 सुबह या शाम? सुबह। सुबह। जी डॉक्टर एम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे मशवरा कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद सिद्दीक साहब। वालेकुम सलाम, खैरियत है डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। सिद्दीक बताइए, आप इससे पहले भी कॉल कर चुके हैं? नहीं, पहली दफा कॉल किया हूँ। माशाल्लाह आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत बढ़िया है। शुक्रिया जनाब। बहुत आदमी लोग को इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है माशाल्लाह। मैं काफी दफा से देख रहा हूँ आपका प्रोग्राम, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत पसंद आता है। शुक्रिया जनाब। देखिए आपके बारे में बता दूं, मैं जन्म हुआ है मंडे की सुबह जन्म हुआ है, जॉब को लेकर थोड़ा परेशान है, डिस्टर्ब हैं, कोशिश बहुत कर रहे हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इंशाल्लाह ताला एक जायचे में एक पावरफुल जायचा है आपका, इंशाल्लाह ताला एक आगे जाकर एक अच्छे तुज्जार बनेंगे, अच्छे एक बिजनेसमैन बनेंगे, अच्छा बिजनेस करेंगे, बिजनेस में आप आगे बढ़ेंगे। थोड़ा डेवलप कर लेना, क्योंकि वीनस इज डेबिलेटेड, जब वीनस नीचे गिर जाता है फाइनेंशियली प्रॉब्लम खड़ी कर देता है, कामों में नाकामियाँ पीछे पड़ जाती हैं। थोड़ा मर्क्यूरी भी कमज़ोर है, स्ट्रांग तो है लेकिन थोड़ा कमज़ोर है दृष्टि के हिसाब से, जिसमें क्या होता है इंसान के पीछे नाकामियाँ पड़ जाती हैं। इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में आप अच्छा बिजनेस करेंगे, अच्छे बिजनेस में आप आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि मैं जो जायचा देख रहा हूँ आपका, बड़े बड़े बिजनेसमैनों का जो जायचा होता है ऐसा है आपका जायचा। 3-4 मतलब 3 योग हैं आपके अंदर, अच्छे बढ़िया से योग हैं, लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, कमांडिंग पावर है, मैनेजर हैं, टीम लीडर हैं, क्रिएटिविटी है, नॉलेज है, विजडम, माशाल्लाह ये तमाम चीज़ें आपके अंदर अल्लाह ताला ने बख्शी हुई हैं। अच्छा पढ़ाई भी है, अच्छा एजुकेशन भी आपके अंदर है, लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपको चाहिए एमराल्ड पन्ना 3 कैरेट का, साथ में वाइट सफ़ेद पुगराज 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा, ज़िंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। अगर आप भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और डॉक्टर एम रजा साहब से बात कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट लेके उनसे मुलाकात कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बना सकते हैं। और जो हमारे विशाखापट्टनम के नाज़रीन हैं वो एवरी वेडनेसडे यानी कि हर बुधवार को सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक मुलाकात कर सकते हैं। विजयवाड़ा के नाज़रीन जो हैं एवरी थर्सडे यानी कि हर जुमेरात को डॉक्टर एम रजा साहब से मुलाकात कर सकते हैं।
ٹائم وہی رہے گا، صبح 9 بجے سے لے کے شام کو 7 بجے تک. اور جو بنگلور یا اس کے آس پاس کے اضلاع سے ناظرین تعلق رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس پروگرام کے ذریعے سے ان کے پریشانیاں دور ہوں، تو وہ جو ہے ڈاکٹر روشن صاحب سے بات کر سکتے ہیں، ملاقات کر سکتے ہیں. ناظرین، اس پروگرام سے یا راسک جیمز اور جیولرز سے کتنے لوگوں کو فائدہ پہنچا ہے، ایک عام آدمی سے لے کے ایک سابق وزیر اعظم تک یا وزیر اعلیٰ تک، انہوں نے پرل کے بارے میں، پرل کی امپورٹنس کے بارے میں کیا کچھ کہا ہے، اس پر بھی ہم ایک نظر ڈال لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ یہ عظیم کائنات حسین بھی ہے اور رنگین بھی. حسن و رنگ کے امتزاج سے بھرا کائنات کا ہر ذرہ اپنے اندر قدرت کے عطا کردہ کمالات سے بھرپور ہے. کسی ذرے کو حقیر نہ سمجھیں. اس فلسفے کو جاننے والے تو بہت سے ہیں، لیکن سمجھنے والا ذہن اور پرکھنے والی آنکھ ہو تو بات بنتی ہے جناب. اور ایسی شخصیتیں برسوں میں پیدا ہوتی ہیں. مبارک ہو آپ کو کہ آج کے دور میں ایسی ہستیاں ہمارے بیچ موجود ہیں. نام ہیں ڈاکٹر ایم رضا اور ڈاکٹر روشن صاحب، راسک جیمز اینڈ جیولرز کے کرتا دھرتا. ڈاکٹر ایم رضا اور ڈاکٹر روشن صاحب کو اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے ایسی نظر عطا کی ہے کہ جہاں کہیں جب کبھی جیمز کی بات ہوتی ہے تو ڈاکٹر ایم رضا اور ڈاکٹر روشن صاحب کی مہارت کی بات ضرور ہوتی ہے. یہ دونوں ماہر جیمولوجسٹ ہیں جو کئی سالوں سے اپنی خدمات سے لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں. جیسے ایک ماہر ڈاکٹر مرض کی پیچیدگیوں کے ساتھ ساتھ دواؤں کی خصوصیات سے بھی واقف ہوتا ہے، ویسے ہی ڈاکٹر ایم رضا اور ڈاکٹر روشن صاحب جیمز کے مزاج کو بخوبی پہچانتے ہیں اور اللہ نے انہیں وہ علم عطا کیا ہے. یہ جانتے ہیں کہ کون سا جیم کس شخص کے لیے مناسب ہے اور اس کی مقدار کتنی ہونی چاہیے. اس راز کی حقیقت یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب جانتے ہیں کہ یہ زمین اپنے اندر مٹی اور پتھروں کے ذخیرے کو محفوظ رکھتی ہے اور انتظار کرتی ہے کہ کوئی نظرداں آئے اور اس کی گوشت سے پتھروں کے بیچ سے گوہر نایاب کو چن لے اور اللہ کے بندوں کو اس کے استعمال سے فائدہ پہنچائے. ڈاکٹر ایم رضا نے یہ کام انجام دیا ہے اور اپنی ماہرانہ خدمات کے سلسلے میں کئی ایوارڈز بھی حاصل کیے ہیں. ڈاکٹر ایم رضا نے ہسٹری، لاجک، سائنس اور ریلیجین کے حوالے سے جیمز کے متعلق انگریزی زبان میں ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے دا پاور آف جیمز. ڈاکٹر صاحب نے صدر جمہوریہ ہند شری پرنب مکھرجی سے ملاقات کر کے انہیں اپنی کتاب پیش کی. اب آپ سب کی دلچسپی کے لیے آئیے آپ کو کچھ خاص باتیں بتائیں. یہ اس وقت کی بات ہے جب عوام کو گوہر اور پتھر میں کوئی فرق معلوم نہیں تھا. تو سب سے پہلے میر سکندر علی نے ان گوہروں کو پہچانا اور ان کی خصوصیات سے لوگوں کو واقف کروایا. میر سکندر علی کے بڑے بیٹے میر علی بابا نے ضلع اننت پور مدکسیرا تعلقے میں 140 ایکڑ مائنز لے کر اس زمین سے پتھروں کو نکالا. ان پتھروں میں قیمتی گوہروں کی شناخت کی اور ان گوہروں کو اس زمانے میں لندن، فرانس، سری لنکا اور جاپان کو ایکسپورٹ کیا. ان کے چھوٹے بھائی ایم حسین نے عام لوگوں کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے گوہروں کا استعمال کیا اور اس کام کے لیے ایک ریٹیل شاپ قائم کی. ایم حسین کے 2 لڑکے ڈاکٹر ایم رضا اور ڈاکٹر روشن صاحب نے بھی اپنے پرکھوں کی وراثت کو آگے بڑھانے اور اس کو برقرار رکھنے کے لیے جیمولوجی میں ڈاکٹریٹ کیا اور 1990 میں ڈاکٹر ایم رضا اور ڈاکٹر روشن صاحب نے راسک جیمز اینڈ جیولرز کے نام سے بنگلور میں ایک شو روم کا آغاز کیا. اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے جنوری 2010 کو شہر حیدرآباد میں بنجارہ ہلز روڈ نمبر 12 پر ایک اور برانچ کا آغاز کیا گیا اور یہ افتتاح کافی سرکردہ شخصیتوں کی موجودگی میں عمل میں آیا. ان شخصیتوں میں کرناٹک کے سابق وزیر اعلیٰ ایچ ڈی کمارا سوامی،
سابق سینٹرل منسٹر ڈی پورندیشوری اور ریاستی سابق وزیر مکیش گوڑ اور ایم وینکٹ رامن بھی موجود تھے۔ اور یہی نہیں، تلنگانہ کے نائب وزیر اعلیٰ محمود علی صاحب نے بھی ڈاکٹر ایم رضا کی خدمات کو بہت سراہا۔ بنگلور، حیدرآباد، دبئی، وجے واڑہ، تمکور اور وشاکھاپٹنم میں بھی اپنے شو روم کا آغاز کر چکے ہیں، جس کا سابق وزیر اعظم دیوی گوڑا کے ہاتھوں افتتاح عمل میں آیا ہے۔ جناب دیوی گوڑا صاحب نے اس موقع پر کیا کہا وہ بھی سن لیجیے۔ انہوں نے کہا کہ جب میں پہلی مرتبہ ڈاکٹر ایم رضا کے والد ایم حسین صاحب سے متعارف ہوا تو انہوں نے مجھے ایک گوہر عطا کیا تھا، جس کے فیضان سے مجھے کرناٹک اسمبلی کی رکنیت حاصل ہوئی اور میری ایم حسین صاحب سے محبت اور دوستی بڑھتی گئی۔ اسی وجہ سے میں آج خاص طور پر راسک جیمز اینڈ جویلرز کا افتتاح کرنے آیا۔ یہاں پر بتا دوں، ہر کوئی اپنے مرضی کے مطابق جواہرات نہیں پہن سکتا، ہر کسی کا ذائچہ دیکھنا پڑتا ہے۔ اس کو جاننے کے لیے آپ کا ڈیٹ آف برتھ چاہیے، ٹائم آف برتھ چاہیے، پلیس آف برتھ چاہیے۔ ان تینوں کو لے کر ہم ستاروں کا حساب لگا کر آپ کو بتاتے ہیں کہ کون سا جیمز پہننا ہے، زندگی میں پریشانیاں کیوں آ رہی ہیں، مشکلات کیوں آ رہی ہیں، ٹینشن کیوں آ رہی ہیں، اس سے باہر نکلنے کے لیے کون سا جواہرات آپ کے لیے کام کرے گا، انشاءاللہ ہم بتائیں گے۔ اگر کسی کے پاس ڈیٹ آف برتھ نہ ہو، ٹائم آف برتھ نہ ہو، سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے نام سے بتایا جا سکتا ہے، ان کی والدہ کے نام کے حساب سے بتایا جا سکتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی حساب لگا کر ہم بتائیں گے کہ کون سا جیمز آپ کے لیے مفید رہے گا، زندگی میں خوش رہو گے۔ جواہرات، جس کی تعریف قدرت کرے اسے کہتے ہیں جواہرات، جس کو انبیاء اپنائے اسے کہتے ہیں جواہرات۔ جواہرات جنت کی نعمتوں میں جس کا شمار ہے، دنیا کی نعمتوں میں جس کا شمار ہے۔ اتنا سمجھ لیجئے، روئے زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں انسان کے فائدے کے لیے ہیں، انسان کے کام کے لیے ہیں۔ اسی زمین کے اندر جو اللہ تعالیٰ کا خزانہ چھپا ہوا ہے، انسان کا اپنا خزانہ جیب میں ہوتا ہے، بیگ میں ہوتا ہے، گھر میں ہوتا ہے، لاکر میں ہوتا ہے، بینک میں ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا خزانہ زمین کے اندر چھپا ہوا ہے۔ اس خزانے سے فائدہ اٹھائیے گا، زندگی میں خوشحال رہیے گا۔ وش یو آل دی بیسٹ۔ تو دیکھا ناظرین آپ نے کہ کس طرح سے پرل استعمال کرنے پر یا گہروں کا استعمال کرنے پر لوگوں کی قسمت میں بدلاؤ آتے ہیں اور ان کی زندگی خوشحال گزرتی ہے۔ دراصل پرل بھی جو ہے دوائی کا کام کرتا ہے۔ جنہوں نے پرل کو اپنایا، گہروں کو اپنایا اور پہنا تو ان کو کہیں نہ کہیں ضرور فائدہ ہوا، جو آپ نے ڈاکیومنٹری میں دیکھا ہے۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور شامل کرتے ہیں ایک اور کالر کو۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے۔ کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر میں کرناٹک گلبرگہ سے صبا بات کر رہی ہوں، مجھے اپنے بھائی کے بارے میں معلوم کرنا ہے۔ جی بھائی کا نام بتائیے۔ حسام الدین، محمد حسام الدین۔ محمد حسام الدین۔ ہاں۔ ان کی تاریخ پیدائش 27 دسمبر 1992۔ 27 دسمبر 1992۔ وقت تو معلوم ہے آپ کو؟ نہیں سر، وقت نہیں معلوم۔ جی ڈاکٹر ایم رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ ان سے سوال کر سکتی ہیں بھائی کے بارے میں۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ السلام علیکم صبا، السلام علیکم سر۔ کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں سر، آپ کا شو بہت اچھا چل رہا ہے، بہت سارے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے آپ کے شو سے۔ شکریہ بن اللہ سلامت ہے کہ بھائی کے بارے میں جاننا ہے۔ ہاں سر۔ جاب کو لے کر پریشان ہے؟ ہاں سر۔ ہر کام میں رکاوٹ، بولے سے بات نہیں سنتا، غصے کا مزاج، جلد باز ہے، شارٹ ٹیمپر ہے، جلد ریاکٹ ہو جاتا ہے، خود کو ہیرو مانتا ہے، کنفیوز رہتا ہے، صحیح فیصلہ نہیں لے سکتا، جاب کو لے کر پریشان، ایجوکیشن میں بریک اپ آیا ہے، پلاننگ بہت ہے، فیلور زیادہ، ناگہانی پریشانیاں بہت آتی ہیں، ایک قدم آگے بڑھا تھا 5 قدم پیچھے ہو رہا ہے، مزاج بھی خراب چل رہا، پریشر زیادہ ہے، ٹینشن ہے، ذمہ داری ہے لیکن نہیں کر پا رہا ہے، باتیں کم کرتا ہے، غصہ زیادہ کرتا ہے، جلد باز ہے، شارٹ ٹیمپر ہے۔ مین وجہ ہے جوپیٹر کا کمزور ہونا، سن کا کمزور ہونا، جس کی وجہ سے زندگی کمزور ہو چکی ہے، ترقی رکی ہوئی، آگے نہیں بڑھ پا رہا ہے۔ زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے، زندگی میں خوشحال رہنے کے لیے، اسٹیبل لائف بنانے کے لیے، کامیاب زندگی بنانے کے لیے آپ کے بھائی کو چاہیے ایلو سفیر پکراج 3 کیرٹ کا، ساتھ میں یاقوت روبی 3 کیرٹ کا، دونوں بنا کر پہنے، انشاءاللہ تعالیٰ زندگی میں خوشی ملے گی، کامیاب رہے گا بھائی، آپ کا لائف میں اسٹیبل رہے گا۔ وش یو آل دی بیسٹ۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے اور آپ نے ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائی، بہت بہت شکریہ۔ شکریہ جناب۔ تو ناظرین
ये प्रोग्राम आपने देखा, मुझे उम्मीद है कि आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा और डॉक्टर एम रज़ा साहब ने जो आपकी रहनुमाई फरमाई है इससे आप ज़रूर फैज़याब होंगे, फ़ायदा उठाएंगे। और नाज़रीन, जिन लोगों ने आज कॉल किया, इस प्रोग्राम का हिस्सा बने, जिन्होंने ये प्रोग्राम देखा, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नंबर आपने नोट कर लिया होगा। अगर आज किसी वजह से आपका कॉल नहीं लगा और इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बन पाए तो आप दिए हुए नंबर पर कॉल करके डॉक्टर एम रज़ा साहब से बात कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट लेके उनसे मुलाकात कर सकते हैं। हैदराबाद के नाज़रीन हो या किसी भी शहर के नाज़रीन हो, ख़ास करके जो हमारे विशाखापट्टनम के नाज़रीन हैं, वो एवरी वेडनेसडे यानी कि हर बुध को, हर चारशंबा को डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं, सुबह 9 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक। और जो विजयवाड़ा के हमारे नाज़रीन हैं वो एवरी थर्सडे यानी कि हर जुमेरात को सुबह 9 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक मुलाकात कर सकते हैं। और जो हमारे बेंगलोर या आसपास के अजला से हमारे नाज़रीन ताल्लुक़ रखते हैं वो डॉक्टर रोशन साहब से मुलाकात कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बना सकते हैं, क्योंकि ये पल जो हैं आपकी ज़िंदगी में एक दवाई का काम करेंगे। तो एक बार आप जो है ज़रूर तशरीफ़ लाइए और डॉक्टर एम रज़ा साहब के मशवरों से फ़ायदा उठाइए। फ़िलहाल ये प्रोग्राम यहीं पे ख़त्म होता है। इसी के साथ अपने दोस्त अहमद राहिल पाशा को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए ETV उर्दू।